جی موجود خواتین و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشر حسن کامران ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل AHK پروڈکشنز سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، آگے شیئر کیجئے تاکہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، عورت ہماری معاشرتی زندگی کی ایک ایسی اکائی ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں رہتا۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی ہیں، عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی ہیں، عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی ہیں، اور عورت اگر بہن کے روپ میں ہو تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا تصور عورت کے وجود کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے میرے آج کے اس پروگرام میں جس محترم شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ جی ہاں، میری آج کی مہمان ہیں ملتان شہر کی معروف ماہر قانون اور ٹیکسیشن محترمہ سعدیہ علی ایڈوکیٹ صاحبہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ جی سعدیہ، ویلکم ٹو مائی شو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، مجھے بڑی تقویت ملی، مجھے بڑا اچھا لگا۔ انفیکٹ بڑے دنوں سے ہم لوگ چاہتے تھے کہ آپ کو بلوایا جائے، تو لیکن آپ کی مصروفیات میں جانتا ہوں۔ ماشاءاللہ ویمن ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی آپ کافی کام کر رہی ہیں، امپاورمنٹ کے اوپر آپ بہت کام کر رہی ہیں۔ بزی شیڈیول ہوتا ہے آپ کا، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ جی میرا پہلا سوال اپنے معزز مہمان سے یہی ہوتا ہے کہ پاک پروردگار نے اپنی اس مقبول شخصیت کو، اس ہستی کو اپنی دھرتی کے کس شہر میں اتارا؟ پیدائش کا ضلع کون سا ہے آپ کا؟ سر پیدائش کا ضلع تو ملتان ہے، لیکن اچھا جی لیکن شجاباد شہر آپ جانتے ہوں گے۔ جی جی بالکل بالکل، تو ہمارے بہت سے دوستوں کا تعلق شجاباد شہر سے۔ تو میرا ہوم ٹاؤن جو ہے وہ شجاباد۔ شجاباد جی جی اچھا اچھا، مطلب پیرنٹس آپ کے یا فور فادرز جو ہیں ان کا تعلق شجاباد شہر جی سے جی ہے۔ وہ میرا شجاباد شہر سے۔ تو پھر آپ کی جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ شجاباد میں ہوئی یا ملتان میں؟ نہیں سر، میری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ شجاباد سے ہی ہے۔ میں وہاں پہ پرائیویٹ اسکول تھا ایک، پاکستان آئیڈیل اسکول۔ پاکستان آئیڈیل اسکول، تو وہاں پہلا اسکول تو سب کو یاد رہتا جی ہے۔ بالکل، اور وہ جو پرنسپل ہیں وہاں کی میڈم شاہدہ گلزار، ان سے میری اچھا۔ بڑی محبتیں ہیں۔ ہاں ہاں، بلکہ آج وہ مجھے جب میرا نام سنتی ہیں اور بڑا وہ مجھے فون کرتی ہیں اور نہیں ماشاءاللہ، آپ جس مقام تک پہنچی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت عطا کی ہے، اساتذہ کرام میں تو خوشی ہونا ہوتا ہے نا۔ جی بالکل بالکل، وہ بلکہ میں خیر جب اپنے اسکول کے زمانے میں بھی ٹاپر تھی تو اچھا ہاں ماشاءاللہ ان کو نا میرا مطلب نام اس طرح سے یاد ہوتا تھا کہ اگین ہماری جو ٹاپر ہیں وہ سعدیہ ہے ماشاءاللہ۔ تو اچھا، وہاں کے بورڈز پہ بھی میرا نام لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ زبردست۔ تو پھر آپ ملتان کب آتی ہیں؟ نہیں سر، میں ملتان آئی، میرا کالج لائف بھی شجاباد سے۔ وہ بھی شجاباد کی جی ہے؟ اچھا شجاباد اچھا، سے میں نے ایف اے جو ہے نا وہ میں نے شجاباد سے کیا، شجاباد ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج سے۔ اس کے بعد سر میں آئی ہوں تھرڈ ایئر سے خواتین کا یہ جو یونیورسٹی بن گئی ہے، خواتین وومن یونیورسٹی۔ وومن یہ یونیورسٹی، کسی زمانے میں ڈگری کالج ہوا کرتا جی ہاں تھا۔ جی ہاں بالکل، بڑا نامور ڈگری کالج تھا جی یہاں سے۔ بڑا نامور ڈگری کالج ہاں۔ تھا۔ تو میری بی ایس سی جو ہے سر وہ ڈگری کالج کی ہے، اچھا اور اس کے بعد ایل ایل بی جو ہے وہ میرا BZU سے میں نے کیا۔ اچھا، کیا آپ نے بی ایس سی سائنس اسٹوڈنٹ تھیں آپ؟ سر میں سائیکالوجی پڑھتی رہی ہوں، سائیکالوجی، 4 ایئرس میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے۔ اس کو بھی تو سائنس کی طرف ہی لے جایا جاتا ہے۔ جی بالکل، اس کو بھی ہاں۔ اس کو بھی اس لیے میں بھی اس لیے بول رہی تھی کہ اس کو بھی اچھا سائنس کی اچھا، طرف۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے، آپ کا میں پروفائل دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ، ایم ایس سی کرمنالوجی آپ نے کی، اور پھر اس کے بعد آپ ایل ایل بی کی طرف آئے۔ بعد میں ایل ایل بی کی طرف میں آتا ہوں، ایم ایس سی کرمنالوجی جو آپ نے کی، یہ کوئی خاص ذہن میں کوئی پلاننگ تھی آپ کی کہ آپ نے لا کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے؟ نہیں سر، وہ اصل میں یہ کہ میری گریجویشن کے بعد شادی ہو گئی، بہت ارلی ایج میں میری شادی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے شادی کے بعد پڑھا۔ تعلیم آپ کی جو ہوئی ہے وہ شادی کے بعد ہوئی ہے؟ جو گریجویشن ہے وہ شادی سے پہلے تک ہے، لیکن ایم ایس سی کرمنالوجی اور لا کی جو ڈگری ہے وہ شادی کے بعد ہے۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ جو کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں،
आप पर तो बहुत फिट आता है। बिल्कुल बहुत बेटर है। आपके हस्बैंड लगता है कि काफी कोऑपरेटिव हैं इस मामले में। हस्बैंड मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफी कोऑपरेटिव हैं। अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव ना हो तो मैं हो नहीं सकता, नहीं, चल नहीं बिल्कुल सकता, जिंदगी की गाड़ी चल नहीं सकती। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है। घर में एक दूसरे के साथ आपको पता है बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज करके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लेके जाते हैं हर चीज़ को। बिल्कुल। तो ये मैं उनका नाम जानना चाहूंगा और करते क्या हैं वो? अच्छा माशाल्लाह सर, नाम है जी मेरे हस्बैंड का हैदर अली। हैदर अली। हाँ जी माशाल्लाह। हैदर अली। और वो जी फार्मास्यूटिकल में उनका जी माशाल्लाह बड़ा, आप यूँ समझते हैं कि उन्होंने फार्मा में कोई अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कंपनी है फार्मास्यूटिकल। अच्छा, अपनी कंपनी है। अपनी कंपनी है। फार्मास्यूटिकल। हाँ जी फार्मास्यूटिकल अपनी सही। कंपनी। और अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्री भी थी हमारी अपनी। तो हाँ जी, तो वो फिर उसके बाद जरा मतलब कभी रुकावट नहीं बने, बल्कि उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट ही किया और आपको एनकरेज ही किया है कि आप पढ़ाई को जारी रखें। हुआ सर ये कि असल में जो मेरे हस्बैंड हैं उनका जो आप यूँ समझ लें कि कास्ट वाइज या उस तरह से वो जो राजपूत कास्ट है उनकी, तो उनकी फैमिली वो में एक हुक्मरानी का एक हुक्मरानी का भी एहसास तो रहता है। नहीं, उनका ये था कि तुम पढ़ो जितना मर्जी, सही। लेकिन तुम जॉब की तरफ नहीं जाओगी। अच्छा, उन्होंने ये कहा? उन्होंने ये कहा कि तुम चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन मतलब हमारी जो औरतें हैं वो घरों से बाहर जॉब के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करती। लेकिन आपने एंटायरली डिफरेंट उनकी बात से, मैं ये देखता हूँ कि आपकी माशाल्लाह एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आप एक मारूफ टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं आप, और डिस्ट्रिक्ट बार की भी आप मेंबर हैं। तो ये अच्छा, मैं एक बात खास तौर से ये पूछना चाहूँगा कि आपने जब ये प्रैक्टिस शुरू की, इनकम टैक्स की पहले शुरू की या आप डिस्ट्रिक्ट बार की मेंबर पहले हुई? सर मैं जो है डिस्ट्रिक्ट बार की पहले मेंबर हुई। अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि मैं जो था, मुझे ना एक शुरू से ही ना मेरे अंदर एक चीज थी, एक जुनून था कि सादिया ने कुछ बनना है। अच्छा। मतलब वो जो चीज थी ना, मैं पहले ना अपने हस्बैंड के साथ उनके ऑफिस में काम करती थी, मतलब शादी के बाद। अच्छा, हाँ ऐसा जी, भी मैंने उनके साथ उनका ऑफिस ज्वाइन किया फार्मा में। मैंने मतलब हैदर का जो ये था कि वो बहुत ज्यादा बिजनेस टूर्स पे होते थे, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी कॉन्फ्रेंसेस पे जा रहे हैं। आफ्टर करती थी फिर मैं उनके पीछे एब्सेंस में, हाँ उनकी एब्सेंस में सारा उनका मैं संभालती थी, बिजनेस भी और लुक आफ्टर करती थी। लेकिन वहाँ पे ना मुझे कहीं ना कहीं लगता था प्रिविलेजेस मेरे पास नहीं है। अच्छा, हर चीज अच्छा। सोच के करनी पड़ती है, हाँ। सोच समझ के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा ये था। और क्योंकि स्कूल लाइफ से ही मुझे था कि मुझे कुछ बनना है, वो चीज ना कहीं इधर से एक आवाज आती थी कि मैंने अपनी शनाख्त बनानी है। सर बहुत ज्यादा आती थी। अच्छा। और हमेशा से मुझे ये था कि मैं कोई भी जैसे क्वालिफिकेशन है या कोई भी डिग्री है, तो वो मैं कोई प्रोफेशनल डिग्री लूं। और बस फिर पता नहीं कैसे ये सोच के फिर आपने एलएलबी किया? सर एलएलबी का भी बड़ा ही आप यूँ समझ लें कि ऐसी कोइंसिडेंट किया कि मैंने ऐसे ही बच्चों के साथ कहीं जा रही थी, तो मुझे नजर आया अल्लामा इकबाल कॉलेज 9 नंबर पे हुआ करता था। जी। ऐसे में इन्फॉर्मेशन चली गई, उसी वक्त फीस भी दे आई, और उसके बाद गई नहीं। तो मुझे कॉलेज से एक दिन फोन आया, आपके तो एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में फेयर हो गई। और लगी कोई इतनी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई कंपार्ट नहीं आई। अच्छा। 3 साल में लॉ, ये 3 साल का लॉ था? 3 साल का लॉ था, और 3 साल में ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। अच्छा। और मजेदारी की बात ये है कि जब मेरा रिजल्ट आया, जिस दिन एनटीएस नहीं होते थे उस जमाने में, मतलब हो नहीं रहे थे पिछले काफी सालों से, 2-4 दिन पहले मेरा लाइसेंस आ रहा है, 3-4 दिन बाद एनटीएस की डेट आ गई। अब मैं अपेयर नहीं हो सकती थी क्योंकि अभी मेरा 3, लेकिन बस कुछ उस्ताद इतने मोहतरम और इतने माशाल्लाह करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। उनका नाम बताएंगी आप? फलक शेर भट्टू साहब हैं जी। अच्छा, फलक शेर भट्टू साहब ने मुझे कहा, रोल नंबर 6 आई मेरी, मुझे कहते हैं तू पेपर देना आ जा। मैं गई तो बस माशाल्लाह मैं उनको सेहत और सलामत और आमीन। हाँ जी सेहत वाली लंबी अपने मोहसिनों को तो हमेशा याद रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और उस्ताद से बढ़कर मोहसिन कौन हो सकता है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी हो गया, लाइसेंस भी आ गया। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर आपने इनकम टैक्स की तरफ आपका रुझान जब बना, तो फिर इसके लिए फिर आपने किन से ट्रेनिंग ली? जी इनकम टैक्स के लिए मेरा जो रुझान बना वो इस तरह से बना कि हस्बैंड, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड उनका ये है कि वो मतलब जाने नहीं देते थे घर में, इस किस्म की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी, कोर्स नहीं जाओगी। अब मैं सोचूं मैं लॉ कर लिया तो किस तरफ जाऊं जहाँ कोर्स में ना जाना पड़े। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जाने की परमिशन नहीं थी। हाँ। तो यकीन करें कि फिर मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया कि सादिया तुम एक काम करो, तुम इनकम टैक्स की तरफ आ जाओ, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं जाना। हाँ नहीं, बड़ा फर्क है,
बहुत फर्क है, बहुत काफी उसमें फर्क है। अब तो सर मैं देख रही हूँ ना प्रैक्टिकली, अब हम देख रहे हैं कि हमें नहीं जाना पड़ता, ऑनलाइन है सारा, ऑनलाइन सारा जी सिलसिला है। ये तो इस तरह से आप इनकम टैक्स तरफ आई, तो फिर आपने किन से ट्रेनिंग ली? सर मैंने ट्रेनिंग ली है शरीफ अंसारी साहब हैं। अच्छा, बशीर अंसारी साहब के साथ जो? जी, बशीर अंसारी साहब के जो शागिर्द हैं, हैं, माशाल्लाह से, और खुद भी माशाल्लाह बड़े अच्छे लॉयर हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर हैं। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से मेरी नेचर है ना कि मुझे हर इंसान के साथ मेरी बाउंडिंग नहीं होती, समझ नहीं आता, तो उनकी बात मुझे ऐसे मिनटों और सेकंडों में समझ आ जाती है, और मुझे ऐसे लगता है समझाने का तरीका भी तो होता है ना। जी बिल्कुल। और उन्होंने मुझे, आप यकीन करें, मैं मेरे दिल से उनके लिए हमेशा इतनी दुआएं निकलती हैं कि उन्होंने मुझे 6 महीने में ट्रेन किया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने काम बताए, इतनी प्रैक्टिस करवाई, और 6 महीने के बाद मैं आप इस काबिल हो गई कि आप इनकम टैक्स रिटर्न को समझती थी, आमदनी को समझती थी, आप वेल्थ स्टेटमेंट बना सकती थी। जी बिल्कुल, वो हम एक्सेल की शीट्स बनाते होते सारी। अच्छा। वो सारा का सारा आपको पता है, ट्रेड और वो सारा, जी बिल्कुल, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और जी रिकंसाइल और वो सारा, वो तो मतलब बल्कि इस तरह से मेरा दिमाग तेज हो गया था कि मैं जब शीट देखती तो मुझे समझ आ जाता था गलती यहाँ पे। नहीं, हम खुद, मैं, मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे, शेख ज़फ़र इस्लाम साहब, मैं उनके पास, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैंने भी 3 साल उनसे सीखा। तो इसके लिए बड़ा प्रोफेशनल होना पड़ता है, आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो जो घर से आपको थोड़ी सी वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको वो फिर किस तरह से वहाँ रिलैक्स हुई? बस माशाल्लाह इस तरह से है कि कहीं ना कहीं हैदर को मैंने समझा लिया कि ये मैंने घर बैठ के करना है। ट्रस्ट भी होता है, असल बात ये कैरेक्टर की मजबूती होती है औरत की, कि उसका हस्बैंड, उसके साथी जो है वो इतना ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि नो प्रॉब्लम। अगरचे ये हमारा मैन ओरिएंटेड हमारी सोसाइटी है, इसमें रह के कुछ थोड़ी सी बातें देखनी पड़ती हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन ये हस्बैंड का ट्रस्ट उसी तो डेवलप होता है जब औरत खुद माशाल्लाह अपनी लिमिट्स को समझती है। बिल्कुल सर, ये लिमिट्स हमने खुद बनानी होती है, बिल्कुल सही। आपको आइडिया हो जाता है मतलब वक्त के साथ साथ कि आपके हस्बैंड की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, आपकी लिमिट कहाँ तक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको क्रॉस नहीं करें, उसके साथ साथ चलें तो चीजें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। सर यकीन करें आप, बल्कि अल्लाह का खास करम है मुझ पे कि जब मैं टैक्स में आई तो मैं, यकीन करें, एक क्लाइंट का फोन आ जाता था ना तो मैं परेशान हो जाती थी, फोन बंद करती थी, शरीफ भाई को फोन करती थी और मुझे बताएं क्या होगा, इसको कैसे करना है, इसको कैसे मैं इसको, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचती हूँ कि मैं वही सादिया हूँ। मतलब आप अकेली हैंडल कर लेती हैं जो भी मैटर्स होते हैं उसके टैक्स पेयर के? सर अब तो अल्लाह का शुक्र है, मैं इस वक्त एसएससीपी की एक्सपर्ट समझ लें, एसएससीपी देख रही हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट मंथ ही मैंने मेरी लाइफ की, कैरियर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस लिया है। अच्छा माशाल्लाह, अभी आपको भी बल्कि जी तो वो उसकी बहुत मुश्किल है, वो मैं उसके ऊपर खुद में काम करता रहा जब मैं डिपार्टमेंट में होता था। जी तो 2 सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 की एग्जेम्पशन होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो भी अभी आपने? सर अभी मैंने उसका जस्ट जो है वो भी अप्लाई करेंगे, एसएससीपी से लाइसेंस लिया है, इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में है। सही। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं उसका टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो है वो भी अप्लाई करूंगी। उसका अपना एक प्रोसीजर है, वो आप अडॉप्ट करेंगे। जी। उसके बाद नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उसको रजिस्टर करा लिया। आज के दौर में ये खासा मुश्किल काम होता है। बहुत। अच्छा, 2015 में माशाल्लाह आपका एलएलबी होता है और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस में भी आ जाती हैं, घरेलू जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चे भी हैं माशाल्लाह आपके। जी माशाल्लाह, बता रही थी 3 बच्चे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का भी मेरा बस यूँ समझ लें कि मेरा जो बेटा है, अल्लाह मियां ने मुझे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ही कोई ज़हीन और बहुत ही नहीं, वो कहते हैं ना बोर्ड के दरख्त के नीचे बोर्ड ही पैदा होता है ना। आप ज़हीन थी तो बच्चे भी ऐसे ही होते थे। तो माशाल्लाह से बेटा मेरा जो है, बेटे और बेटी जो है, अभी छोटे वाला तो बहुत छोटा है, अभी वो 7 इयर्स का है। अच्छा। और बड़ा बेटा जो मेरा है माशाल्लाह वो ओ लेवल कर रहा है, और बेटी मेरी जो है वो मैट्रिक में है, उसको मैंने ओ लेवल की तरफ उसका रुझान नहीं था, तो दोनों मेरे बच्चे माशाल्लाह थ्रू आउट पोजीशन होल्डर हैं। बेटा मेरा स्कॉलरशिप लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़े उनके पास तो इतने वो जमा हो चुके हैं मेडल्स, तो वो मैं काउंटिंग करती हूँ। नहीं देखिए, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में अच्छा खासा टाइम दरकार होता है खास तौर पर,
पर्टिकुलरली आपको अकेले बैठ के कंप्यूटर पे काम करना होता बिल्कुल है ऐसा ही है। और हर चीज के फिगर वर्क होता है ना, आप बिल्कुल। एक की भी गलती नहीं कर सकते, गुंजाइश ही नहीं होती। तो फिर ये फैमिली साथ साथ चलती है, तो वो भी आपसे ताउन करते हैं। और ऑफिस भी मेरा ख्याल है आपने घर में बनाया हुआ है। जी 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 सर, ऑफिस में मैंने अपनी रेजिडेंस से बनाया हुआ है कि अच्छा। मैं बच्चों को, बेशक सेपरेट है लेकिन बच्चों को थोड़ा सा ये तो होता है ना कि डर कि मामा घर पे ही मामा है। घर पे हैं। और उसके अलावा ये है कि जो मेरा मी टाइम था ना, कि जो इंसान का अपना एक टाइम होता है, उसको मैंने जो है वो समझ लें सेक्रीफाइस वो किया। सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रातों को मैं प्रोफेशन के लिए ये तो करना पड़ता है। जब सब सो जाते हैं तो मैं अपना काम कर रही होती हूँ, बिल्कुल लेट सही। आवर्स में काम कर रही होती हूँ। हाँ। कुछ क्लाइंट्स मेरे अभी भी कहते हैं कि मैम तुम सोते नहीं हो क्या? कि क्विकली रिस्पॉन्स और ये सब जो है। सही। अच्छा चले, माशाल्लाह, ये तो आपके प्रोफेशन के हवाले से, आपकी एजुकेशन के हवाले से हमारी बात अच्छी हो गई। आपका एक प्रोफाइल का एक हिस्सा ये भी है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप बड़ा काम कर रही हैं, मुख्तलिफ NGOs वगैरह की आप जो है वो अहदेदार भी हैं, मेंबर भी हैं। इस हवाले से कुछ बताइए कि ये एहसास कैसे पैदा हुआ, सर कहीं कोई कमी देखी आपने किसी के अंदर कि कोई मुतासरा लड़की को देख के आपके दिल के अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि इनके लिए कुछ करना चाहिए? सर असल में पता है कुछ चीजें ऐसी हैं कि मेरा अपना जो बैकग्राउंड है वो तहसील शुजाबाद से, जी जी ठीक है। वहाँ पे जो कुछ मैंने देखा और औरतों का जो लाइफस्टाइल देखा, तो अच्छा कभी कभी जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती होती थी कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी आ जाए और मैं सबकी मदद करूँ, अल्लाह अकबर। और मेरे पास कोई सवाल ही आ जाए तो मतलब बोलनी नहीं चाहिए ये बात इतना ऑन एयर, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस हद तक मैं कर सकूँ किसी मैं। के लिए आप जो कर सकते हैं हाँ वो तो वो करें। सर अल्लाह ने मुझे मतलब इस तरह से नवाजा है और मेरे अंदर ये एक है, मतलब एक किसी कह वो सकते हैं हजरत कि- अली करम अल्लाह वजह का फरमान अली शान है ना कि आप दूसरों के लिए दुआ करें, आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये अगर आप जब दूसरों का काम करते हैं तो आपके काम फिर अल्लाह ताला खुद अपने हाथ में ले लेता है, वो खुद करता है। बेशक सर, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे लिए। तो मैं यकीन करें कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, मैं कभी कहूँ ना बस दुआओं में याद रखें। तो मुझे एक हमारे चैम्बर के जी अकाउंटेंट साहब हैं, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मुल्तान के ना, तो वो मुझे कहते हैं पुत्र रोए तेरे वास्ते दुआ दिलों निकलती है, वाह वाह, ते वेरी आने की गुड, जरूरत नहीं माशाल्लाह। पैंदी। अच्छा आपके लिए तो मैम दुआ दिल से निकलती है। अच्छा 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 तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 2022-23 में नाइब सदर रही हूँ, वाइस प्रेसिडेंट अच्छा रही हूँ अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जबरदस्त। और मैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मुल्तान, वुमेन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री बहावलपुर, इस तरह से लिया, इस तरह से TG खां, तो इन सब की लीगल एडवाइजर भी हूँ। तो स्पेशल जो डिजास्टर्स वगैरह आते हैं हमारे यहाँ, उनमें भी आप खवातीन के लिए कुछ करती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे चैम्बर ने अभी जो आपको पता है सैलाब की जो सैलाब की सूरत हाल थी जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के पूरे पूरे घर बेचारों के बह गए ना, हमने जी सामान बह गया, घर बिल्कुल, बह गए। हमने उन्हें जी टेंट भिजवाए, अच्छा। हमने उन्हें फूड भिजवाया, हमने उन्हें फिर बाद में उनके फिजिकली खुद भी जाती रही जी आप? फिजिकली मैं वन टाइम जा सकी, अच्छा। लेकिन हमने सामान को आपने सारा मैनेज किया? जी मैनेज किया बिल्कुल अपने सेक्रेटरी के अच्छा। साथ मिलके। बल्कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं चैम्बर के, उन्होंने माशाल्लाह बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उन्होंने तो बल्कि इस हद तक किया कि जिन लोगों की फसलें तबाह हो गई थी उनको फिर सीड और ये सब कुछ भी भिजवाया ताकि वो लोग दोबारा अपनी फसलें उगा सकें। और इस तरह से हमसे जितना हो सका, आंटी ने भी, आंटी फरूख मुख्तार माशाल्लाह शी इज वेरी जी जी, उनकी तो सारी फैमिली माशाल्लाह, जी जी फैसल मुख्तार साहब हो गए, जी 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 वो हो गई, तो तो काफी काम करते हैं इस आंटी वजह से। फरूख मुख्तार तो मतलब इतना उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि बस जो खत्म हो रहा है, जो खत्म हो रहा है पता करो और भिजवाओ। माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बड़ी अच्छी आपके साथ गुफ्तगू चल रही है। तो मेरा एक छोटा सा सेगमेंट है जिसको अच्छा। हम फास्ट ड्राइव का नाम देते हैं। अच्छा ये छोटे छोटे सवालों से इंसान की शख्सियत ओवरऑल जो है ना खुल के सामने आ जाती है। ठीक है, मैं सवाल करूंगा, आप मुख्तसरन उसका जवाब देंगी। ओके। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक। अच्छा अच्छा, ये ब्लैक वाले, ब्लैक कलर को जो लोग पसंद करते हैं, मैंने पढ़ा है कि बड़े मजबूत और आसाब के मालिक होते हैं, बढ़ चढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो पसंदीदा फूल कौन सा है? गुलाब। गुलाब। अच्छा, अभी रिसेंटली मेरे पास एक हमारे मेहमान आए हुए थे, उन्होंने कहा मुझे चमेली का फूल पसंद है, मोतिये का फूल। अच्छा, मौसम अल्लाह तबारक व तआला के सारी बहुत खूबसूरत है, एक अंदर का मौसम भी होता है। आपको कौन सा मौसम पसंद है? मुझे वैसे जो है ना सर्दियाँ पसंद है।
सर्दियाँ पसंद है, नहीं बहुत अच्छा, सर्दियों के लिए तो बहुत कुछ लिखा जाता है, तो बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, हफ्ते के दिनों में आपको दिन कौन सा अच्छा लगता है? फ्राइडे। सैयदुल अय्याम जिसको कहा गया है। अच्छा, फ्राइडे। कुछ लोग छुट्टी वाले दिन को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि काला रंग आपको पसंद है, तो आप मेहनती हैं, तो आपको डेफिनेटली यही आपको मेहनत करना अच्छा लगता है, इसलिए फ्राइडे पसंद है। लिबास जो है, ख़वातीन का लिबास हर तरह का है, साड़ी है, शलवार कमीज़ है, वो शरारा है, गरारा है, चूड़ीदार पजामा, इस किस्म की। आपको कौन सा लिबास पसंद है? सर मुझे वैसे तो कमीज शलवार ही पसंद है, अच्छा, लेकिन मैं थोड़ी मेरी नेचर में है कि मैं जरा मतलब हर तरह के ड्रेसेस डिफरेंट जरा पहन अच्छा, लेती हूँ। कोशिश करती हैं आप कोशिश पहनने करती की। हूँ कि हाँ जी, अच्छा, हर तरह के। अच्छा, ये बताइए, गुस्सा आता है? बहुत। किस बात पे गुस्सा आता है? सर मैं कोई अब झूठ आपको बोले तो गुस्सा आता है? झूठ पे गुस्सा आता है। अक्सर लोगों को ऐसा ही होता है कि जब उनके सामने कोई झूठ बोलता है, तो फिर गुस्सा शदीद हो जाता एक है। मिस कमिटमेंट और एक झूठ, ये दो चीजें मेरी लाइफ में नहीं है। अच्छा, शख्सियत में जब आप किसी नए इंसान से जब आप मिलती हैं, तो कौन सी चीज़ आपकी परखती हैं आप? उनकी लिबास, उनकी गुफ्तगू, या उनका स्टेटस? क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है? उनकी सीरत, सीरत, शख्सियत का पता चलना शख्सियत चाहिए जी, कि ये कैसा है। स्टेटस नहीं मैटर करता। अच्छा, आप ये बताइए, इज्जत, दौलत, शोहरत, आप इनकी नंबरिंग कीजिए। नंबर 1 पे क्या है? इज्जत, नंबर 2 शोहरत, शोहरत, नंबर 3 पे दौलत दौलत। आती है। हालांकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि दौलत आ जाए तो बाकी दोनों चीज़ें भी मिल जाती हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। सबसे पहले इज्जत, फिर शोहरत, फिर उसके बाद दौलत आती है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ, दोस्त बनाती होंगी डेफिनेटली आप, बहुत। बहुत कम बनाती हैं, तो मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के साथ भी आपकी एक एसोसिएशन है लंबी चौड़ी। आप 3 ऐसी मोहतरम शख्सियत का नाम लीजिए जो आप, जिनको आप पसंद करती हैं, और लेडीज भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। नंबर 1 पे बशीर अंसारी सर बशीर अंसारी साहब, अच्छा। जी। नंबर 2 पे शरीफ अंसारी अच्छा, दो तो अंसारी हो गए। और नंबर 3 पे शाहिद सिंह। शाहिद सलीम हाँ इज जी, आल्सो वेरी नाइस गाय। हाँ जी। तीनों बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन शान है। अच्छा, आप माशाल्लाह मल्टीपल आपकी मसरूफियात हैं। प्रोफेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा, आप मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, अच्छा, अल्लाह ताला आपका आप अपने किसी बच्चे को चाहेंगी कि वो एलएलबी करे और फिर इस फील्ड में आए? मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बेटी है वो करे, वो इस फील्ड में। इस फील्ड में आए, हाँ मतलब आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि जी, वो आप उनके लिए सोच सकती हैं। जी, खाना पकाना आता है? बहुत अच्छा। टाइम तो मिलता नहीं है, तो फिर कब पकाती हैं आप? मैं बड़ी स्पीडी हूँ, आपको नहीं अच्छा, पता। नहीं सारा खाना पका लेती है कि कोई आपको प्याज छील के दे, कोई आपको जनाब गोश्त हाँ, धो के दे, कोई सब्जी धो के दे, आप ऐसा है कुछ? पहले सब कुछ ये मैं खुद करती थी, अच्छा, लेकिन जब मसरूफियत के वक्त साथ वक्त के साथ कम साथ अब होता ये है। होता है कि चीजें पड़ी होती हैं, प्याज व्याज ये वो, बस मैंने उसको जो है वो बनाना ही होता है। अच्छा, माशाल्लाह, आपने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं माशाल्लाह। इस वक्त आपका प्रोफाइल बड़ा मजबूत है, लेकिन साथिया मैं देखता हूँ कि ये हमने अपनी ज़िंदगी में भी देखा, पढ़ा भी यही है कि ये मैन ओरिएंटेड सोसाइटी है, मर्द का माशरा है। इन सारी बातों को देखते हुए आप ऐसी हमारी बच्चियां जो अब इस फील्ड में आना चाहती हैं, पर्टिकुलरली लॉ की फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या ख़ास पैगाम देती हैं अपनी कामयाबियों को मद्देनज़र रखते हुए? सर मैं बच्चियों के लिए बच्चियों को इस तरह का पैगाम देना चाहूँगी कि एक तो बच्चियों को साबित कदम रहना चाहिए, साबित कदम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए सबसे मजबूत पहले। होना चाहिए जी जी। फिर वो अपनी लिमिटेशंस खुद तय कर लें, हालात के हाथों मजबूर होके कोई डिसीजन मत करें। ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने, अपने लिमिटेशंस का खुद उसका फिक्स करें कि मुझे जी, यहाँ तक जाना है, तय्युन कर लेना कि तय्युन कर लें उसके, उन्होंने बिल्कुल। देखिए, और भरोसा करें अल्लाह पे और उसके रसूल पे, और सल्लल्लाहु अलैहि यकीन करें वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यकीन करें कि अगर इंसान कोई भी लड़की इस मजबूत फेथ के साथ और साबित कदम रहती है, अल्लाह ने रास्ते और आसानियाँ खुद ही बना देंगे। सही। और यकीन करें उनको कभी कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी,
ان کی عزت بھی محفوظ رہے گی. اللہ میاں دیکھیں رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, بالکل صحیح ہے. بندوں کا کیا اختیار ہے مجھے یہ بتائیں, اور ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بندہ اپنی نیند پہ اختیار نہیں رکھتا, اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا, اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتا. تو بس تو کیسے لڑکیاں سمجھ لیتی ہیں کہ وہ مطلب کہ وہ کسی بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ سکتی ہیں اور وہ اس منزل کو پا سکتی ہیں. یہ جو لڑکیوں کا ہے نا مطلب سوچ, یہ ٹوٹلی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بچیوں کو خود پہ بھروسہ کر کے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ آگے بڑھیں, انشاءاللہ کامیابی ان کی قدم چومے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی معزز خواتین و حضرات, ابھی آپ انتہائی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت دلچسپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. ہماری آج کی معزز مہمان محترمہ سعدیہ علی ایڈوکیٹ صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس قدر خوبصورت پیغام دیا ہے کہ بچیوں کو ضرور کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہیے, مردوں کا معاشرہ ہے, لیکن اپنے لمٹس کا ان کو تعین خود کر لینا چاہیے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور آج پروگرام ختم کرنے سے پہلے آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھے. ترازو وزن بتا سکتا ہے, معیار نہیں بتا سکتا. میں محترمہ سعدیہ علی صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, ہمیں بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. بلکہ آپ کے انوائٹ کرنے کا شکریہ کہ مجھے آپ نے ایک پلیٹ فارم دیا جہاں کہ ہم اور کچھ نہیں, کوئی میری آج کی اور آپ کی اس گفتگو سے کوئی ایک لائن بھی, کوئی ایک سبق بھی ہماری بچیوں کو مل جاتا ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی آپ نے انتہائی قیمتی اور خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی ہماری معزز مہمان شخصیت محترمہ سعدیہ علی ایڈوکیٹ صاحبہ کے ساتھ. آج بہت اچھا وقت گزرا ہے, اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اشر حسن کامران آپ سب سے اجازت چاہتا ہے اپنے پروڈکشن انچارج محمد احمد اور ان کے پروڈکشن اسسٹنٹ مس کرن, سید نبیل حسین اور خرم شہزاد کے ساتھ. رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.